Namaskar and welcome. You're watching Midday Prime. I'm Sakal Bhatt. In a significant development, Prime Minister Narendra Modi released the 8th installment of the financial benefit under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi or PM Kisan scheme. Now, in this upcoming tranche, over rupees 19,000 crores will be transferred to the bank accounts of more than 9.5 crore land-owning farmers, which is the highest single tranche to be paid so far. Our top focus on the Midday Prime continues to be that story, plus we'll get to the latest on the COVID situation across the country and world. And also on World Prime, we get you the latest on the decades-old Israel-Palestine conflict, which has flared up yet again with two sides launching unabated airstrikes at each other. But first up, the big news of this hour. Prime Minister Narendra Modi disperses over 19,000 crore rupees to 9.5 crore farmers across the country as part 8th installment of PM Kisan scheme. Interacts with beneficiary farmers, urges farmers and villagers to follow COVID-appropriate behavior to protect from infection spreading in villages. Total vaccination doses in the country nears 18 crore mark. Union government to supply nearly 1.92 crore COVID vaccines to states during the fortnight of 16th to 31st of May. Cumulative recoveries in the country exceed 2 crore. First dose of Sputnik vaccine administered in Hyderabad. In other news, states take stringent measures to contain the spread of the pandemic. Bihar announces lockdown till 25th of May. Maharashtra extends lockdown by 15 days. Restrictions to remain in force in the state till 1st of June. Essential services open and available to the needy. International aid to the nation continues. South Korea, Belgium, Italy, Singapore send oxygen tankers and medical equipments, while Indian Railways supply total of 7,115 metric tons of oxygen throughout the country. More news. US allows fully vaccinated people to not wear masks outdoors and indoors in most places. Biden calls it a great milestone and extraordinary success in vaccinating Americans quickly. And tensions escalate in Israel-Gaza violence. Death toll from Israel strikes on Gaza rises to over 100. Lebanese military source says Lebanon fired 3 rockets towards Israel. The Israeli army clarifies that its troops have not entered the Gaza Strip. And nation celebrates Eid al-Fitr today, marking the end of the holy month of Ramadan. President, Vice President wish people. Prime Minister Narendra Modi prays for everyone's good health and well-being on this auspicious occasion of Eid al-Fitr. And we begin Midday Prime with the big news at this hour. Well, Prime Minister Narendra Modi today released the 8th installment of financial benefit under Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme, and this has enabled the transfer of more than 19,000 crore rupees to more than 9 crore 50 lakh families of the farmers. Speaking on the occasion, Prime Minister said that the first installment of the Kisan Samman Nidhi has reached millions of farmers of Bengal today, and as the names of the farmers from the states will be received by the central government, the number of beneficiary farmers will increase further. बंगाल के किसानों को पहली बार इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हुआ है। आज बंगाल के लाखों किसानों को पहली किस्त पहुंची है। जैसे जैसे राज्य से किसानों के नाम केंद्र सरकार को मिलेंगे, वैसे वैसे लाभार्थी किसानों की संख्या और बढ़ती जाएगी। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि से विशेष रूप से
छोटे और मझोले किसानों को अधिक लाभ हो रहा है। आज के कठिन समय में ये राशि इन किसान परिवारों के बहुत काम आ रही है। अभी तक इस योजना के तहत देश के लगभग 11 करोड़ किसानों के पास लगभग 1,35,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। And Prime Minister said that about 10% more wheat has been purchased at MSP as compared to the last year so far. He also informed that millions of farmers of Punjab and Haryana are connected with the facility of direct transfer. अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड़ रुपए 58,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि अब किसान जो उपज मंडी में बेच रहा है उसको अब अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता। किसान के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में जमा हो रहा है। मुझे संतोष है कि पंजाब और हरियाणा के लाखों किसान पहली बार डायरेक्ट ट्रांसफर की इस सुविधा से जुड़े हैं। अभी तक पंजाब के किसानों के बैंक खाते में करीब 18,000 करोड़ रुपए और हरियाणा के किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। And now let's cut live across to BJP press conference by Sambit Patra. Time due to deployment of tankers और इसी प्रकार से अखबार में पूरा रिपोर्ट छपा है जिसका एक समरी मैं आपके सामने रखूंगा और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की अकर्मण्यता को आपके सामने उजागर करूंगा। ये पेसो क्या है जिसकी रिपोर्ट आज आई है? ये पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लगभग 5-7 दिन का एक स्टडी किया है और ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, मेरे हाथ में रिपोर्ट मौजूद है। ये रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया था भारत सरकार को कि इस प्रकार से स्टोरेज की कमी दिल्ली सरकार के पास रही थी ऑक्सीजन को लेकर। क्या मुख्य बिंदु हैं जो पेसो ने अपने इस रिपोर्ट में रखा है? पहला, उन्होंने कहा है कि एक्सेस एलएमओ अवेलेबल इन दिल्ली इज हैम्परिंग द स्मूथ सप्लाई फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। कि आज दिल्ली के पास, ये कोई आज का रिपोर्ट नहीं है, आज हम जब 14 तारीख बैठे हुए हैं, 14 तारीख मई का, ये रिपोर्ट आज का नहीं है, ये 9, 10, 11 ये पहले का रिपोर्ट है, विगत संडे का रिपोर्ट है, पिछले शुक्रवार का, पिछले शनिवार का रिपोर्ट है। उस समय की जो परिस्थिति दिल्ली में थी, आज से एक हफ्ते की पहले जो परिस्थिति दिल्ली में थी उसको रिपोर्ट में कैद किया है और वो कहते हैं कि एक्सेस सप्लाई दिल्ली में ऑक्सीजन की हो रही थी और हम सप्लाई कर रहे थे, दिल्ली इसको स्टोर नहीं कर पा रही थी और इसका नतीजा हो रहा था जो टर्न अराउंड टाइम होता है, टैंकर आएगा, टैंकर यहाँ ऑक्सीजन अनलोड करेगा एलएमओ और उसके बाद टैंकर वापस जाएगा। क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी तो टैंकर का टर्न अराउंड टाइम बढ़ गया था और इसका खामियाजा जो आसपास के राज्य हैं जहां ऑक्सीजन और भी सप्लाई करना है उन राज्यों को भुगतना पड़ रहा था, ये रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरी बात, आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री और दिल्ली की जो सरकार है उन्होंने कोर्ट्स में भी जाके डिमांड रखा था, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कि हमें ऑक्सीजन 700 मेट्रिक टन, 750 मेट्रिक टन, कहीं उन्होंने 900 तो कहीं उन्होंने 935 मेट्रिक टन, इस प्रकार के ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट की बात आज से एक हफ्ते पहले की थी। मैं आपको सूची भी दे दूं कि पहली बात उन्होंने 700 मेट्रिक टन का डिमांड किया था, यह मई 5 को किया था और मई 8 तारीख को, मई 8 को भी उन्होंने इसको रीआइटरेट अर्थात पुनः इसको दोहराया था कि हाँ हमें 700-750 मेट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन चाहिए। और ये तो बड़ा आश्चर्य का विषय है कि उसी समय जो ऑक्सीजन बुलेटिन जारी हुआ था, मुझे याद है एग्जैक्ट डेट भी बताऊं तो 6 मई को, और ये हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जहां अरविंद केजरीवाल 730 मेट्रिक टन चाहते थे, उन्होंने धन्यवाद भी दिया था केंद्र सरकार को,
वहीं ऑक्सीजन बुलेटिन जारी करके राघव चड्ढा जी जो ये सारा देख रहे हैं, उन्होंने 976 मेट्रिक टन ये डिमांड किया था एक ही दिन में, कुछ मिनटों के अंतराल में ये हुआ था। तो एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन था। और आज पेसो जो है, ये पेसो उसी को रिपोर्ट करके प्रस्तुत कर रहा है। वो कहता है कि मई 5, मई 6, मई 8, मई 9 को दिल्ली की डिमांड 700-730 मेट्रिक टन के आसपास की थी। मगर उसी दौरान जब ये डिमांड दिल्ली सरकार कर रही थी, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे थे, उनके पास अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस, उन्होंने उसे अंग्रेजी में अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस कहा है, किसी प्रकार का अल्टरनेट स्टोरेज स्पेस अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में निर्मित नहीं किया था और दिल्ली में मौजूद नहीं था। तो क्या कर रहे थे? अगर स्पेस मौजूद नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी ने आसपास के राज्यों को चुपके से इन्फॉर्म किया कि आप हमारा स्टोर करो ऑक्सीजन, और सप्लायर को फोन करके चुपके से कहा कि आप अभी सप्लाई रोक दो, इतना ऑक्सीजन भेजने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उदाहरण उन्होंने दिया है और ये टेबुलेटेड फॉर्म में एक उदाहरण है कि किस प्रकार से सप्लायर से कितना कितना ऑक्सीजन रोकने के लिए गुहार किया गया। मैं ये उदाहरण आपके सामने